Okay, yes, Assalamu alaikum. My name is Ishan and I welcome you to all to lecture 1 of subject programming fundamentals. Let's break the ice. As I have mentioned before, my name is Ishan. I have been serving in Department of Electrical Engineering as lecturer. You may approach me via my email address zishan.ali@huw.edu.pk. You may consult regarding your subjects or any queries related to any lecture on Monday between 10 a.m. to 11 a.m. and on Friday from 10 to 12 p.m. You may also approach me physically. I am available at cabin 1, male faculty, second floor, Wa Engineering College. So these are the reference books that we will be using in our course during the 16 weeks, starting out with Programming Logic and Designs by Tony Gaddis, the C programming language by Brian, Object-Oriented Programming in C++ by Robert LaFleur, C How to Program, 7th edition by Dittel and Dittel, Problem Solving and Problem Design in C++ by Jerry. See How to Program 7th edition by Paul Dittel and Dittel will be your reference book that we will be using, or you may consult any other material available online or offline in our library. So what will be the contents that we will be covering in our programming fundamentals course? First, introduction to problem solving, a brief review of von Neumann architecture, a basic introduction of programming, role of compiler and linker, then introduction to algorithm, basic data types and variables. Then we will discuss what are input and output constructs, arithmetic, comparison and logic operators, conditional statements and execution flow for conditional statements, repetitive statements and execution flow for repetitive statements, list and their memory organization. After that, we will be move on to multi-dimensional list, introduction to modular programming, function, definition and calling, stack rolling and unrolling, string and string operations, pointers and references, and at the end, static and dynamic memory allocation and file input-output operations. So what are the outcomes of this course? At the end of this course, you will be able to understand basic problem solving steps and their logic construction. Second, you will be able to apply basic programming concepts in order to solve real world problems, design and implement algorithms in order to resolve real world problems that exist in our daily life. Let's talk about marks distribution. There will be 6 assignments and all 6 will be having 10% weightage. 4 quizzes, 2 before mid and 2 after mid. 4 of them will be having the combined weightage of 10%. Then mid exam that's happened around 9th week. That will be having 25% weightage. Then final exam of 45% and then project at the end of semester that will be having the weightage of 10%. Now let's dig into what is problem solving. Let's imagine there is a problem and you need to solve or suggest a solution to it. Then there is a whole process or method in order to resolve that or solve that problem, in order to suggest that problem. So process of working through the details of problem to reach a solution. In simple words, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और अगर आपने उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक इन बिटवीन जो भी प्रोसेसेस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं. Someone seeking to solve a problem may use 7 steps of problem solving. There are 7 key steps in order to solve a given problem. Step 1, define identify the problem. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे सिनेरियो में आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या. देन एनालाइज द प्रॉब्लम. You need to analyze what is the input, what is the output, what is the demand of your problem, जो जिसके लिए आप solution suggest कर रहे हो. Identify possible solution. There may be a time जब आपके पास multiple solution exist कर सकते हो, तो उनमें से आपने जितने भी solutions हैं उनको आपने point out करना है कि for example there is a problem and there are 4 solutions to that. तो आपने वो 4 key solutions आपने identify कर लेने हैं. Then selecting the best solution. Not all of them can provide you the optimized solution to that given problem. तो उनमें से कोई एक होगा जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा, जो मिनिमम टाइम ले रहा होगा.
आपकी मिनिमम एफर्ट ले रहा होगा बट आपको सोल्यूशन बेस्ट परफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यू नीड टू सिलेक्ट दैट प्रॉब्लम, देन एवेलुएटिंग सोल्यूशंस, आपने उन सोल्यूशंस को एवेलुएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल के तौर पे भी देख सकते हैं, देन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के तौर पे भी आप उन्हें जज कर सकते हो, एवेलुएट कर सकते हो। देन यू नीड टू डेवलप एन एक्शन प्लान, आपको एक एक्शन प्लान डेवलप करना है, मींस कि आपने सोल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो सो यू नीड टू डेवलप एन एक्शन प्लान, देन ऑब्वियसली इंप्लीमेंट दैट सोल्यूशन। सो लेट्स फर्स्ट स्टेप जो था आपका, डिफाइन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसमें मेंशन किया गया राइट डाउन द स्टेटमेंट विच समराइजेज द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आपकी एक स्टेटमेंट आपने ऐसी मेंशन करनी है जो आपके प्रॉब्लम को समराइज कर ले। सेट अ गोल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आपने एक गोल सेट करना है, एक केपीआई आइडेंटिफाई करना है जिसके थ्रू आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकेंड, एनालाइज द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, और एनालाइज किस बुनियाद पे करना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग हैज़ द प्रॉब्लम बीन गोइंग ऑन, क्या वो प्रॉब्लम कितनी देर से एग्जिस्ट कर रहा था, आइदर इट्स अ न्यू वन, और एक काफ़ी अरसे से चल रहा था, एक टाइम हो चुका था बट वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था और आपके पास सोल्यूशन नहीं था। नंबर टू, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसी कौन से इश्यूज हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। नंबर थर्ड, इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, वो ऐसे क्या इफेक्ट्स हैं या ऐसे क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो उस प्रॉब्लम की वजह से अराइज हो रहे हैं और आपके होल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड देन, आर देयर मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्विंग दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्या वो एक ही स्टेप से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, या देयर विल बी अ मल्टीपल स्टेप्स जो ज़रूरत हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, आइडेंटिफाई पॉसिबल सोल्यूशन, अब इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, यू नीड एक्सपीरियंस इन सम केसेस, और आपको कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, यू हैव टू डिस्कस और यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम गिवन लिटरेचर कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो ऑल आइडिया शुड बी रिटन डाउन टू वैल्यूएट लेटर। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन, अब आपने उसमें से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है कि मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है जो एफर्ट कम ले बट आपको आउटपुट बेस्ट जनरेट करके दे। सो यू नीड टू select that best solution among available solutions। Obviously then you have to evaluate solutions, आपने उन solutions को evaluate भी करना है in order to find out best available solution। तो उनमें से जो for example कुछ इस तरह से questions भी हो सकते हैं, what are the advantages of each solution, हर solution के कुछ pros and cons होंगे, you need to evaluate that। are there any disadvantage of the solution, किसी solution का disadvantage भी है, अगर है तो you have to note it down in front of that particular solution। do disadvantages outweigh advantages, क्या ऐसा भी है कि एक प्रोसेस जो है, एक सोल्यूशन जो है वो अच्छा लग रहा हो आपको उसके, बट एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हो बट उसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस से ज़्यादा हो। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज। एंड वुड द सोल्यूशन एक्चुअल सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या वो सोल्यूशन एक्चुअल में सॉल्व भी कर रहा है प्रॉब्लम, जिस तरह आपने पहले, लेट्स गो बैक टू दिस सेकेंड स्लाइड ऑफ दिस कि एनालाइज द प्रॉब्लम, इसमें आप देखें कि हाउ लॉन्ग द प्रॉब्लम हैज़ बीन गोइंग ऑन, और क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व भी करेगा, तो ये बेसिकली आपने इसमें से फाइंड आउट करना है। देन डेवलप एक्शन प्लान, आपने एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाना है कि टास्क क्या होने चाहिए उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा हर एक सब टास्क के लिए, एंड हु विल डू ईच टास्क। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिज़ाइन एन ऐप, आपने फूड पांडा के एक अगेंस्ट एक ऐप आपने लॉन्च करनी है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपने कुछ की पॉइंट्स मिस कर रहे होंगे या कुछ आपको इश्यूज आ रहे होंगे फूड पांडा पे, तो यू नीड टू डेवलप न्यू ऐप इन कंपैरिजन टू फूड पांडा। तो अब फूड पांडा ऐप एक आसान नहीं है, एक छोटा टास्क नहीं है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि फूड पांडा में वो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको आपकी ऐप टैकल करेगी। देन आपने उसमें से ये डिज़ाइन डिस्कस करना है कि आप उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, देयर कुड बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, उनमें से आपने बेस्ट सूटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। देन अब आप ऐप डेवलप करने जा रहे हो, तो हर डेवलप ऐप के डिफरेंट फीचर्स हैं, उस फीचर्स को एक बंदा बैठ के तो नहीं डिज़ाइन कर सकता, ऑब्वियसली देयर विल बी टीम बिहाइंड इट। तो उस टीम के लिए आपको टास्क डिवाइड करने हैं, 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। तो आप उन टीम्स में सब टीम्स बना देंगे और हर एक टीम को एक सब टास्क दे दिया जाएगा, एंड दैट्स हाउ द होल टीम विल गेट टुगेदर एंड फॉर्म अ और
propose a new app. When this plan is complete, post it where it will be seen. आपने जो ऐप डिज़ाइन की हुई है वो जब डिज़ाइन हो जाएगी तो देन आपको ऑब्वियसली ऐप स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे आपने उसको ऑनलाइन सेल करने के लिए डिस्प्ले पे लगाना होगा। ओके ओके, देन इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब आपने एक्शन प्लान डेवलप कर लिया तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मार्केट में? जैसे ही आपने फूड पांडा के अगेंस्ट एक ऐप डेवलप की थी, तो क्या वो कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थे जो सॉल्व करे? अगर थे तो यू हैव सक्सेसफुली सजेस्टेड अ गुड solution to a existing problem. So that's all for today. Thank you all for joining. If you have any questions or comments, do ask after the lecture via my email or in group. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ डू डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। हम इस लेक्चर को दोबारा भी पढ़ सकते हैं या हम इसको दोबारा भी रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।